बेटे बस आपको ये देखना मैं क्या बोलता हूँ और आपको आप दोनों को बस किस पॉइंट पर बंदा क्या बोलता है अंकल आप ये देखो, ठीक है? सुन रहे हो किस पॉइंट पे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कहाँ कंटेक्स्ट स्विच करता हूँ, लौट के फिर कहाँ आता हूँ, वो ध्यान रखना। जहाँ आपको दिक्कत लगे सीधे पूछो, ठीक है? .NET is a product of Microsoft. It is a product of Microsoft. For us it is a software. But for Microsoft it is a product. कॉपरेट कर दो जल्दी उठा चेयर दो तो फटाफट बैठने टाइम पे नहीं आ सकते। गेट बंद करो, किसी को पता नहीं, जल्दी आओ बंद करो गेट। नलायक आगे देखो गधे। हेलो यस हेलो कौन? हाँ बोलिए। कौन बोल रहा है? मनोज? कौन मनोज? D55 सेक्टर 7। D55 सेक्टर 7। यार जल्दी सुनो मेरी क्लास है। D55 सेक्टर 7 D55। हाँ ठीक है। So .NET is a product of Microsoft. For us, it is a software. .NET consists. बालक मैं किसी को बाद में खड़ा करूंगा, जवाब नहीं मिली सेंटर आना नहीं सकता अगली क्लास में, सुनो ठीक से। So .NET is a product of Microsoft. For us it is a software which consists several languages for developing the application. बेटा लिखते भी चलो, कुछ ऐसा करो थ्रेडिंग चलता रहे दिमाग में, सुन भी रहे हैं लिख भी रहे हैं। हाँ अचानक बोल नहीं पाओगे। .NET is a product of Microsoft which consists several languages for developing the application. Point 1, एक पॉइंट हो गया, ठीक है? And language are respectively C#, VB.NET, VC.NET, Perl.NET, COBOL.NET. We have several languages in .NET. ठीक है? Using .NET, we can develop, for the practice point of view, console-based programs. We can develop console-based DOS as a turbo compiler like in C. So by using .NET, we can develop the console-based application. We can develop the window-based application, and we can develop the
web-based application, and we can develop also tier-based application. Tier-based is called web service and WCF. Tier-based is called distributed-based. What? Distributed-based. PC1 to PC2, PC2 to PC3. As a networking, you can say. I mean to say, using .NET we can develop wide range of applications. By using what? .NET we can develop the wide range of an applications. But mainly, primarily, we use web-based or distributed-based. Is called N-tier-based, is called tier-based, is called web service and WCF service. So, to develop the web page, we need to go for ASP.NET, and to develop for the N-tier networking based, you go for web service and WCF. So finally, we can develop wide range of applications. But don't try to spell .NET is a framework, please. Don't try to say .NET is a language, please. MS Office is not a word. It is a collection of words. PowerPoint, Excel sheet, and the word. Similarly, .NET is not a language. It's just a software to install. Once install the software as a .NET, then you are supposed to work in different types of applications. You can go to practice point of view, Harmonic series, Factorial, Cell Short. You can go console based, as you can recall DOS, Turbo Compiler. You wanna go Windows, you can also go Windows, in-house projects and all there. You wanna go for web page, you can also go via the ASP.NET. And you wanna go N-tier based, distributed based. I want to connect PC1 to PC2, PC2 to PC3. You go for web service or WCF. So these are categories we can go for. ये point 1 हो गया, पूरा complete point 1. मैं बाद में पूछूंगा वाला. Second point पे, that's the most important point, an attractive point in an interview. ठीक है बेटे, आए समझ में? तो .NET एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा आप मल्टीपल प्रोग्रामिंग कर सकते हैं. अब आपको देखना आपका इंटरेस्ट क्या है. बट मैं सजेस्ट करता हूँ ज़्यादा वेब की ओर जाओ और ज़्यादा N-tier की ओर जाओ. ये कंसोल ने सब कर रखा है, बोलो कहाँ पे? अपने एकेडमिक में, अपने BCM टेक में सबने कर रखा है DOS बाई टर्बो कंपाइलर. और विंडोज़ भी यूज़, आर सिस्टम यूज़, आपकी आर सिस्टम ज़्यादा यूज़ करती है विंडोज़. बट ये नहीं कर सकते, विंडोज़ ही करती हैं. They also promote for working in the virtual web. But there is a mixed mode right now. We can go Windows, either we can go web. But there is a probability proportional. We have more in what? Web comparing to what your Windows. My Jamala has gone. We will work with Windows and all. So point 2. That's the important and attractive points. एक बात है, बोलना है, सुन लो लास्ट के बाद. Sir, whether you go for console or I go console doesn't matter. Or whether I go for window or web. For developing any type of applications via .NET or in .NET, they have given me respective libraries. They defined respective libraries. Library word नहीं समझ में आता, header file बोल दो. क्या बोल दो? Header file. Header file नहीं आता तो जावा की पैकेज बोल दो. तीनों वर्ड नहीं आते, जो वर्ड इंग्लिश को कैटेगराइजेशन. ये पूरी समुदाय ब्राह्मणों की है, ये पंजाबियों की है. सो फॉर डेवलपिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन एप्लीकेशन, दे आर प्रोवाइडेड टू अस. गेट खोलना, देखना कौन है. गेट खोलो. देखा है तुम्हें, याद नहीं आ रहा. यू हैव कॉल्ड मी. अभी आपने कॉल किया था. No, one of my friends. मनोज, वेयर इज ही? जल्दी आओ. देर से क्यों आया? Sir? देर से क्यों आया क्लास में? Sir, वो कहाँ है?
ओनली बैच कितने बजे मेरी 1:30 में है। और जल्दी आओ मेरे पास, जल्दी आओ, टाइम पे आते नहीं हो यार। 12:15 की बैच है। आपने कॉल करा था? तुम्हारा कॉल आया था मोबाइल पे मेरे? मनोज एक्चुअली सर कंफ्यूज था कि काउंसलर डांट खाने से बच गए बालक। ठीक है। जहाँ भी दिक्कत लगे सुन रहे हो सब बताऊंगा बेटे, सब बताऊंगा, चिंता नहीं। मैं काफ़ी देर कर दी। मेरी 1:30 की बैच है, मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। क्यों? उसमें बंदे 15+ आते हैं, 17+ एक्सपीरियंस। मैं तमिल फ्रॉम गुड़गांव, तो वहाँ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो बेटे टाइम का ध्यान रखो। वो बंदे अगर 5 मिनट अगर बाहर बैठेंगे उनका लाखों का लॉस होगा। तो दे आर मैनेजर्स, दे वांट द बैच ऑन द टाइम 1:30। इसमें 98 के बंदे हैं, 99 के बंदे हैं। दे वांट माई टाइम शुड बी यूटिलाइज्ड। Ensure that for next time you please come at 11, 12, 15. अब 12 बजे आ जाओ यार, we start at 12, 15. मैं थोड़ा रिवाइज कर दूँ मैंने क्या बताया, ठीक है? I said, why do we learn .NET? So what is in .NET which encourage me or motivate me to go for learn as a passionate? So passion what is needed, you want to go for developing a program, so you want to go for any association. Word really comes called passion, fine. So if you have a passion, you can learn easily. The motive has to be, subjective is needed. So why do we go? I said it is a one package, kind of package, as we provide a combo, where you can develop the wide range of applications. It supports polymorphic nature, fine. So what you want to do, you want to go for web, you can go web. You want to go for NTM, web services based, distributed based, you can provide a service to World Wide Web, you can go. By WCF or web service. You want to go Windows, you can also go Windows, fine. It supports different types of application you can create by the word. As you can say, you can have a polymorphic nature. It requires a polymorphic nature, fine. So one object can have multiple behavior. So how you can expose, you can have a multiple behavior. So the object is having a language like C#, fine. The C# can work in console. It can deal also with the Windows, or you can also use C# in the web, or you can also go networking in C#, fine. So you can develop the different types of application by C#. But I'm recalling my rookie days, rookie engineering college. So when I was there, I have learned C, fine, and data structure. So, and also even though C++. So my C++, not fit for developing, not fit. I really cannot use, I cannot use C++ for developing the web page. Come on. There's a major differentiation between. Don't really go for negative differentiation, right? The perspective, if you talk about perspective and positive level. So I say C# enhance. It is encapsulating the feature of C++, and C# can behave as a C++. It encapsulates the feature of existing, but C++ ke dwara, you cannot develop the web page. It is more with the device, more with the Windows, more with the networking, more with the graphics and all. But you want to go for, you cannot go for developing the web page by the virtue of C or C++. So it doesn't mean I'm having any satire on the C++. It is good for developing the device-based, protocol-based. When I joined CDAC, I was CDAC R&D, Bangalore, Hyderabad and Basel. I worked there in C++ more right now, with the Visual C++. So I know how to play the device, activate the device and all that. But unfortunately, you cannot go for the web-based. So don't really go for negative differentiation. It has own uses, it has own perspective,
The C# is a language. Is promoting a web-based, it is promoting a web-based, or it is supporting www, If support protocol HTTP, you can go for making a fun, and world can expose can get your informations. So I hope if you want to go for classification level, generalization level, so talk the positive perspective. C++ is fit for developing the device-based, graphics-based, protocol designing and all there by C++. And you want to go for abstract layer, the visual layer, where you can have a click, you can have a fun, where you can go for web page by using a C#. So it is having a polymorphic nature. So you can have a different sense to go. तो बेटे second point आपको बोलना है interview में. Okay, I wanna go for developing any type of an application. ठीक है? I wanna go for developing any type of an application. Whether you go for console or you wanna go web service, doesn't matter. For developing any type of an application, they have given to us the library. They have given the what? Respective libraries. Like, I want to go for drawing, graphics, 3D. I can use ready system.drawing.2D, drawing namespace. No, I really want to go for the Windows form. I can go system.windows.forms.dll. No, I want to go for ASP.NET. You go for system.web.dll. No, I want to go for web service. You go a system.web.services.dll. No, I want to go for WCF. Really, I mean to say, we have assorted and things are classified. As you can recall, your academic MC or BTech, where we had graphics.h, math.h, stdlib.h, sqldb.h, conio.h. There are different header files there in what C++ or in C. So as we can talk about physics, mathematics, chemistry, So we have different types of libraries. According to your requirement, you can connect, you can get some output and all there. As you can say abstraction, as you can say what? Abstraction. So it is up to you what basically you want to use. So those libraries are defined in a framework. You go to C drive, you go to Windows, you go to Microsoft.NET, you will go to framework. मैं इसको वाला 2000 से देख रहा हूँ, 2000 से. मेरे जमाने की बात है 1.0. The very first version ready in 2000. 1.0, 1.1, 2.0, 3.0, 3.5 and 4.0. So beta, there are two terms, .NET and framework. So what is .NET and what is framework? Microsoft Visual Studio .NET framework. How you can differentiate? कितना experience है आपका? 5+. How you can differentiate .NET with a framework? Framework is a platform which you are developing the applications. And what is .NET then? .NET is a software. फर्क आएगा जोर से. बेटे मैं ऐसे बात करता हूँ, आपकी एक नेगेटिव रिजेक्टेड. अगेन यू ट्राई. तुम ट्राई करो 5+, तुम ट्राई करो. How you can differentiate .NET with framework? अगर बेटे दोनों एक ही वर्ड हैं, फिर सारे दो वर्ड क्यों हैं? .NET अलग, फ्रेमवर्क अलग. सुनो, मैं आपको बताऊँ. अब यहाँ पे कोई बच्चे मेरे इसके चक्कर ही नहीं है. यहाँ पर ये है. अब मेरा बैच इसके बाद झंकार 98 का पास आउट अंकल, 98 का, और मेरे इसका बंदा. तो बच्चों को मैं कैसे कन्विंस करूँ?
जब बेटे मैंने पहली बार सीखा था .NET, सुन, पहली बार, तब डार्लिंग मेरे जमाने में सारे .NET नहीं था, ओनली फ्रेमवर्क। जब कोई ट्रैक्टर निकल कर आई थी वर्कशॉप से, उसके ऊपर का कवर नहीं था, UI लेयर नहीं था, ओनली एसेसरीज था, कम मेन इंजन था। The very first version of the Microsoft .NET was without .NET. You can go to that time. You can download the .NET Framework 1.0. Maybe you can only download Framework 1.0, and you can go to command prompt. You can go to Notepad. You write your programs. तो उन दिनों हम लोग ऐसे काम करते थे, ऐसे। और 95 में जावा आई, only JDK. मेरी पिन फोल्डर वॉज देयर, सारे जावासी कंपाइलर थे, JVM आपका रन टाइम एनवायरनमेंट था, अब ये सारे पैकेजेस थे। बाद में इसका विजुअल लुक आया। तुम सारे सर से लेके और तुम्हारे पैर तक, तुम इस पोर्शन तक किसी काम का नहीं, मैं तुम्हारे ब्रेन को देखता हूँ, राइट? बेटे 20 साल के बाद तुम्हारी ब्रेन और मैच्योर हो जाएगी, तो तुम्हारा बॉडी और कमजोर हो जाएगा। तो सोच, फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क इज आर्किटेक्चर, फाइन। फ्रेमवर्क इज आर्किटेक्चर। फ्रेमवर्क हैज ऑल द कोर कंपोनेंट्स। बेटे आपकी कार की जो इंजन है वो फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क ढांचा। तो फ्रेमवर्क is available in C drive, Windows, मैं आपको दिखा चुका हूँ, फिर से देखें, Windows, Microsoft, .NET and Framework. Look at .NET over Framework. So without .NET, I can really develop the application. But darling, without framework, I cannot develop the application. And in 2000, in same year 2000, last, they have given the visual look of framework by .NET. So look at really what is visual look. I am giving one program, fine. एक प्रोग्राम दे, हमने ये खोला कि बेटे मेरे पास ये स्टॉल नहीं है, ये नहीं है, ओनली क्या बोलो फ्रेमवर्क। अगर बेटा फ्रेमवर्क है तो फ्रेमवर्क की सारी लाइब्रेरी है। अगर फ्रेमवर्क है तो कदे फ्रेमवर्क की क्या बोलो लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क की कंपाइलर है, और फ्रेमवर्क के पास रन टाइम एनवायरनमेंट, इसको CLR। एंड .NET minimizes the effort really for developing the application. If you have any thought when running in your brain, you want to draw a circle, you want to really make a web page, हेलो, यस, हाँ बोलो। हाँ बेटे क्लास होगी 1:30 में, ठीक है। So, you want to develop any applications, I can really ease my effort, I can really minimize my effort if you give me .NET. Without having really any effort, I can really make a Windows. So I am saying a bit of 5+ हो। एक छोटा बच्चा भी समझ क्या सीखता है .NET, तो झंकार आने वाला है, वो सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर टेक्नोलॉजीज का, वो मुझसे क्या सीखना है, वो भी .NEट सीखने आ रहा है। एक 14+ का बंदा भी 98, 13+ का बंदा भी आ रहा है मेरे पास, एक 5 का बंदा भी आ रहा है, ये 7 का बंदा, और ये 1-2 के बंदे हैं। क्या पता
I have to teach a very framework architecture. What? अगर मैं उनके सामने डॉट खोल दूं, साले क्लास से क्लास में नहीं है, उनको पता मैं 97 का। What do you want, baby? I said really I want to go for developing any application. I can work really without .NET. But if you give me .NET, I can simplify my task. चले मेरे पास आम है, वो शौक है आम खाने का, मेरे को मिक्सी दे दे यार, साला काम जल्दी हो जाएगा। I can simplify my task. बेटे डेवलपर के .NET एक बेटा टूल है, क्या बोलो? एक टूल है। तुम्हारे पास अगर लॉजिक है और तुम सीखो मुझसे .NET। अगर आपके पास लॉजिक नहीं है, आप .NET कहां से सीखो? विजार्ड से सीखो। कहां से सीखो? विजार्ड से। देखो we can easily say that basically framework जो है basically interaction between Windows OS and .NET। मतलब जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो Windows OS 01 के फॉर्मेट में बेटा ऐसे बोल, ऐसे बोल। To develop any application, what do you require, baby? First, library. इसको ingredients. Second, beta compiler. And third call, runtime environment where I can run the program consistently. Is called CLR. All these three are wrapped in what? Framework. And .NET uses framework to simplify the application development time. I said, when I learned the first time Java and .NET without IDE. So bloody, what is .NET? It is IDE. What? इस बच्चे को साला स्केलिंग करनी है। मैंने कहा अगर ये स्केल नहीं है मेरे पास, कर तो थोड़ा समय लग जाएगा, सर स्केल तो जल्दी हो जाएगा। ओके बेटे अगर 5+ के ऊपर जाओगे तो तुमसे क्या पूछेंगे? बोलो आर्किटेक्चर पूछेंगे। बोलो कौन? What is garbage collection, baby? How CLR works? How you can really optimize the memory? This is really 5 points I can optimize the memory. They don't want to ask me, baby, the web page, the film really called fantastic or drag and drop, the button click. हम नहीं कहते बेटे वो मत सीखो, पहले डिजर्व करो सीखने के लिए। तो first you go for background layer, then you go to what? User layer. So बेटा .NET is a what? User layer. देखिए मैं देख दिखाता हूँ। देख हमें आया ये बेटे मैंने खोला .NET। बेटे ये क्या है? एक यूजर लेयर। आप यकीन नहीं करोगे, मैं साले अपने सेंटर के काउंसलर को सिखा सकता हूँ .NET। मैं साले अपने प्यून को सिखा सकता हूँ .NET। उसको मैं आर्किटेक्चर नहीं सिखा सकता। हमारा राइट अंकल? इसको साला सिखाने का कॉस्ट अगर मुझसे पूछो तो 500 रुपये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो बेटा if you really join any coaching center and what he can teach, really how to open the .NET and how to what really close the word .NET. साले विंडो मीडिया प्लेयर खोल दो, करे गाना सुना दो, साले बंद हो गया। बेटे मुझे आर्किटेक्चर सीखना है कि विंडो मीडिया प्लेयर के पीछे मेमोरी कहाँ से आ रही है, कर्नल कैसे वर्क कर रहा है बैकग्राउंड पे। And if you know those things better, maybe then you can really go for learning the video media player, the very features called burn, whatever. You can really have listening any song doesn't matter. बेटे इसको चला कौन रहा है? इसको चला कौन रहा है बेटे? फ्रेमवर्क। Who runs you, baby? Who runs you? Your brain. एक साला छोटा बच्चा 3 महीने का है। He doesn't have any sense and sensibilities. उसकी मदर उसके लिए क्या बोलो? फ्रेमवर्क है। इसको चला कौन रहा है बेटे? फ्रेमवर्क। ये चला रहा है गुरु, ये और इस पे तू कहीं भी क्लिक कर दे। बेटे डिफरेंस किस चीज का होगा? जनता क्या देखो बेटे, डिफरेंस किस चीज का होगा? बेटा लाइब्रेरीज का। बोलो कौन? फन का। साले ऑडी ले ले, होंडा ले लो,
मारुति जेन ले लो, आपको डिफरेंस दिख जाएगा, या फिर ऑडी में और मजा आ जाएगा। व्हाट इज वेरी देयर लग्जरियस लाइफ, व्हाट, ओ माय गॉड, क्या बात। उठो अंदर से मिलवाते। ये बच्चा जो पढ़ाई करके गया, आप यकीन नहीं कर सकते, आपके लेवल पे वेल सेटल्ड, इतना मारा है मत पूछो, 8+ का बंदा है, और ऐसा सच्चा ब्राह्मण, पीछे नहीं हटा मार खाने में, इतनी गाली मत पूछो। बिकॉज आई एम वेरी हियर नॉट एज ए मास्टर, बट यू टेक मी एज ए रिपेयरमेंट टू। I want to diagnose you what you are, what you have done. If I know you better, I can teach you better. As emotionally attachment. But if you have a master, I can show the slides, the 4 points, I can discuss it. बैठो, सुनो। तो ये फ्रेमवर्क देख रहे हो, बेटे डिफरेंस किस चीज का होगा? सारे फीचर्स का, बोलो कौन? फीचर्स का। और क्या हो सकता है? सर लाइब्रेरी की डिफरेंस हो सकती है, तो बेटा कहीं भी क्लिक कर दो, जहां मन करता है वहां क्लिक कर दिया। इसके बाद 3 खतरनाक चीज, और वो 3 चीज सफिशिएंट है एक प्रोग्राम बनाने के लिए। हाँ, फैंटासी नहीं है, फन नहीं है, हमें प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। अगर सर डॉटनेट दे देगा तो लिखना ना पड़ेगा। तो बेटे जब मैंने सीखा था डॉटनेट, साले उन दिनों कहाँ थी आईडी, इसने प्रोग्रामिंग सीख ली। आज बच्चों के साथ तुम खड़ा करके देखो, जावा आती है, डॉटनेट आती है, डेटाबेस गया माइनस, कुछ गया 0। am I right सर? मन होगा साले को आग लगा तो बॉडी में पूरा, ये साला मस्त लगा दे यार। लेकिन ही इज अ वेरी मैन विदाउट अ ब्रेन। सर सुनता है कि जावा करने से जॉब लगती है, और डॉटेड फिर उसके पीछे भाग जाता है। उसको ना पॉलीमॉर्फिज्म आती, ना इनकैप्सुलेशन आता, ना अर्ली बाइंडिंग आती, ना लेट बाइंडिंग आता। व्हाट ही नोज बेबी ओनली हाउ टू क्लिक एंड हाउ टू गेट। उसकी लॉजिक बिल्डअप नहीं है, क्यों? उसे डीएस नहीं करा है, साले ने सीएस नहीं करी है, उसके फंडामेंटल ठीक नहीं है। तो बेटे यहाँ मुझे 3 चीज मिल गई, मैंने देखा 3 चीज क्या मिली। अब system.dll, एक लाइब्रेरी मिल गई, मत एक मल्टीपल लाइब्रेरी। अब बेटे लाइब्रेरी में क्या होंगे? कलेक्शन ऑफ क्लासेस होंगे। सेकेंड देखा बेटा, CST मिल गई, C# कंपाइलर। चलिए और क्यों देखो, एक कंपाइलर काफी है मेरे लिए। थर्ड देखा MS Cori, मिल गई CLR, मिल गई CLR। MS Cori, MSCORIE, ये लिखा गया विजुअल C++ में बालक, यूजिंग MFCs, इसको CLR। ये आपके प्रोग्राम का वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके सपोर्टिव तुम्हारे 15-16 DLLs और हैं, आपको सही नाम से दिख रहा होगा। MS Core जहां आ गया, सब CLR के इर्द गिर्द घूमने वाले कंपोनेंट हैं। ठीक है बेटा, आपको मैंने कंपाइलर दे दी, और क्या दे दी? लाइब्रेरी, और एक रन टाइम एनवायरनमेंट जो कि प्रोग्राम को मैनेज करे। मिसाल ऐश करो जो बेटा फ्रेमवर्क का, अगर आप सिंपल हिंदी पूछोगे, शुद्ध हिंदी, तो हम ब्राह्मण तो बेटा ढांचा, स्ट्रक्चर, स्केलेटन। अगर तुमको साले फ्रेमवर्क का मतलब पूछना है तो मेरे बड़े भाई के पास है, बी सिविल, आओ बेटा तुमको बना के दिखाते हैं इस पुल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। एक बेटे इंजीनियर ने एक लेआउट तैयार कर दी, बोलो कौन? लेआउट। और वो साले उसको मजदूर भरेगा, साले प्रोग्रामर भरेगा। तो डिफाइनिंग अ स्ट्रक्चर और डिफाइनिंग अ लेआउट
where you can walk. It is called framework. अब देखो, लो माउस कीबोर्ड लो कीबोर्ड करे, डरो मत। एक विंडो फॉर्म बना के दिखाओ, चले बनाओ। मुझे नहीं पता साले, मुझे नहीं पता, बना के दिखाओ विंडो फॉर्म। बेटे बुरा मत मान, और मुझसे पढ़ना है। एक फ्रेशर भी फाइल न्यू विंडोज खोल लेता, और साले मैं भी खोलता हूं फाइल न्यू विंडोज। दोनों के कदे आंख में डिफरेंस होना चाहिए। मेरे आंख में विजन है। बेटे जब गेट पे बच्चा खड़ा होता, उस साले को मैं देखता हूं ऊपर से नीचे, वो क्या कर सकता है मुझे पता है। अंकल के पास विजन है, एक मदर के पास विजन है। मेरा बच्चा भूखा है, शी नोज उसको फीड की आवश्यकता है। एक्सपीरियंस कॉल विजन। संदीप इस साले को मत ले, क्यों? ये बदतमीज है, उसको बात करने का तरीका नहीं। इस साले के पास नॉलेज है, तमीज नहीं, तो बाहर निकालो यहां से। राइट? फ्लेक्सिबल है तो बंदा है। ये मेरे सीडैक के डायरेक्टर कहते थे, जीवन सीधा। मैंने कहा सर कितना सा जवाब दिया, सब रेट्स का, जावा बीन्स का, क्यों निकाला? उसका क्या देखता है? तो नॉलेज देखता है, मैं आदमी देखता हूं। तू नहीं समझेगा बच्चा है। साले एक आदमी 4 रात पढ़ के प्रोग्रामर बन सकता है, बट बदतमीज एक आदमी 4 रात में एक आदमी नहीं बन सकता। राइट बॉस? तो साले मेरे साथ 4 रात बैठ जा, अरे मार मार के तेरे को सिखा दूंगा .NET। मैं तेरे को 4 रात में मैं तेरे को आदमी नहीं बना सकता। ऐसा होता गुरु, फिर डिफेंस आर्मी जेल क्यों होते? बनाओ करे। तेरी वो विजन कहाँ है? एक वेब पेज बनाओ, वेब पेज बनाओ भाई, वेब पेज। देखो देख क्या रहा है। हाँ जी 5+, चलो एक वेब पेज बनाओ साले, बनाओ। अभी सलाह देने को बोलो .NET की आईडी, तो मिल जाएगी चंपा चमेली, बनाना शुरू कर देगा। बना बेटे। एक वेब पेज बनाओ, एक सिंपल बटन हो और उसकी क्लिक इवेंट हो बस, और ब्राउजर से वो वेब पेज खुले मेरी। सबसे पता .NET क्या है? .NET कैन सिंप्लीफाई योर डेवलपमेंट। बेटे टूल है, टूल है। साले पढ़ना तो डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, उसका फंडा क्लियर करो। कुछ नहीं है .NET में। हम नहीं कहते तुम मत पढ़ो .NET, बट पहले फंडामेंटल तो ठीक करो तुम। हाँ जी बालक 5+, देखने पार्टी देख रहा है। ये कहानी अंकल NCR की। यहाँ पढ़ाई का माहौल ही नहीं है पहली बार। चले पता नहीं बंदों के दिमाग में कहां से घुस गई, .NET करने से जॉब लगती है, जावा करने से। एक अच्छा अगर अंकल .NET जानता होगा, लाजवाब, वो साला कोडर है। फिर वो बदतमीज कोडर है, वो प्रोग्रामर है, वो खेती वाला बंदा है। राइट त्रिपाठी? जैसे समझ लो बच्चे को नशा आ गया गेम खेलने का, इधर लॉक करिए नालायक। बेटे आपको क्वेश्चन नहीं पूछना डार्लिंग, डोंट माइंड। मैं क्वेश्चन नहीं करता हूं किसी से, बट कोई तुमसे पूछ दे हाउ विंडो फॉर्म वर्क्स, हाउ वेब पेज वर्क्स,
तो बेटे आप देखो, अब मैं आया, देखिए ये कितना फैंटासी है साले में। देखिए फाइल न्यू, दीप्ति को पता है फाइल न्यू, चलो क्या हो गया बोलो, वेबसाइट। जब ये 5 साले क्लास में सीख लेगा मेरे से। फाइल न्यू क्या लिखा है बोल, प्रोजेक्ट विंडो। MS ऑफिस से भी इजी है बेटे, कहाँ है तू? मैं पूरी जिंदगी में लगा दी डेटाबेस को समझने, उसको समझने में, अब तक नहीं आया। और उसमें मेरे बाल भी सफेद हो गए, पूरी उस ना आई अब तक। देख मैं 3 चीज मिल गया। तो बेटे यहां पे क्या लिखा है, y.net, a man who knows logic. He knows logic. What is logic? He can give a shape. He can give a shape. The shape of windows, the shape of web. If he has logic there. This IT runs via logic, not via Java and all. एक आदमी को पैसा उसके लॉजिक का मिलता है। वो साला काम करे ना करे, ये साले काम कर, ये फोन पे हूँ, ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, साला सो गया 2 दिन के लिए दारू पी के। क्यों? उसने लॉजिक दे दी तेरे को, साले ने दे दी लॉजिक, चलता बना आगे। वो कंसल्टेंट है। वी डोंट नीड बेटर, इसलिए करते हैं मैं सबको एक बार डेटा स्ट्रक्चर पर। बेटे पता है त्रिपाठी, मैंने एक बंदा खोजा है, वो मेरे कभी गुरु होते थे, मेरे गुरु यहाँ पे भी आए हुए हैं, 95 के रुकिन कॉलेज के पास आउट, अभी नोकिया के सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, अभी आएंगे 3 बजे। क्या उनका नॉलेज है डेटा स्ट्रक्चर में, मत पूछो। उसने सीखने के लिए क्या नहीं करा, सारे हद क्रॉस करेंगे कि मैं दिल्ली आया सीखने के लिए, मेरा कमाना सपना नहीं था, मेरा सीखना सपना है। और इतनी खुशी होती बंदा मेरे सेंटर में आके बच्चों को पढ़ा रहा है डेटा स्ट्रक्चर और सी। अब तो आईटी बन गई ना। 1999-2000 तक वो रुकिन जी कॉलेज था। तो y.net, why Java? If you have baby logic, you can really give a shift. अदरवाइज साले मेरे किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं है गुरु, सर मेरे पॉइजन है। अब मेरे पास छोटी सी लॉजिक है, छोटी सी लॉजिक किसका? इनहेरिटेंस का। मैं अपने आप को गधा से इनहेरिट कर लूं, मैं गधा बन जाऊंगा। मैं सारा सर्किल से इनहेरिट कर लूं गधा, मैं सर्किल बन जाऊंगा। इनहेरिटेंस। द बेस क्लास क्या है? प्रोवाइडर। डिफॉल्ट बिहेवियर टू व्हाट? डिराइव क्लास। चलो एक काम करते हैं, तो राइट ए प्रोग्राम टू मेक अ सर्किल। सर एक काम कर, क्लास खोज उसमें सर्किल का गुण हो, किससे इनहेरिट हो जाए बोलो। तो बेटे मैं ये कर रहा हूं, हम लोगों से मिलते गए और सीखते चले गए। बस ये मेरी कहानी है। मैं सीखने के लिए अंकल कहाँ नहीं गया। मुझे लगा बंदे के पास नॉलेज है, सारा काम सारा छोड़ सिडैक का, चल गधे के पास सीखने के। हमने सीखने के लिए एक रात एक कर दी और हर का बिहेवियर मेरे में आ गया। आज वो मेरे साथ नहीं है गुरु, कोई यूएसए यूके बैठा है, कोई बैंगलोर में HP में है, कोई मेरे साथ नहीं है, पर सबका डिफॉल्ट बिहेवियर क्या बोलो मेरे साथ। इट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। और कुछ नहीं है लाइफ में, लोग मिलते जाएंगे और छूटते चले जाएंगे। अब आ जाइए, आपको मैं दिखाता हूं एक बिहेवियर। फ्रेमवर्क में गया, एक लाइब्रेरी खोली, सी दिस और विंडोज। हमने क्या करा, कंप्यूटर रेफरेंस के बुक से पूरा उस पढ़ गए 15-16 बार। बालागुरु स्वामी की बुक निकाली, पढ़ गए।
अब देखो रात में जो पोस्ट करते हैं 12 बजे रात में, मैं डॉट नहीं करता हूँ अंकल, मैं अपनी पुरानी खून को करता हूँ, शैलो कॉपी, डीप कॉपी। वैसा दिनेश त्रिपाठी गया गधा इंटरव्यू में भगा दिया, शैलो कॉपी पूछ रहा है 10+ के बंदे से, शैलो कॉपी क्या है, डीप कॉपी क्या है, बोल कर शैलो कॉपी क्या है, व्हाट इज शैलो कॉपी इन सी शर्ट, लिखो पढ़ो लिखो। अपने दिनेश त्रिपाठी का छोटा वाला आरा पानी WCF डिजाइन पैटर्न अकादमी सक्सेना से पूछता शैलो कॉपी क्या है। आई होप 8+ का बंदा होगा। यू हैव टू हैव एवरीथिंग एज ए नॉलेज। आप हर चीज करोगे, हर चीज के इन वन शेप। आई वांट टू सी वेरी एवरीथिंग। एक एज आने के बाद अंकल आपको हर चीज आना पड़ेगा। एज यू कैन से गार्जियन। अब देखिए हम अब यहां आ गए, विंडोज। हमने कहा कुछ किया अंकल, ये बने बनाए क्या बोलो नेम स्पेस है, सिस्टम नेम स्पेस है, उसका विंडोज क्या बेटे सब नेम स्पेस है, और गधे का फॉर्म्स क्या बोलो सब नेम स्पेस है। अब सुना इस फॉर्म्स के पास अंकल, या देखिए इस फॉर्म के पास बटन है, टेक्स्ट बॉक्स है, फॉर्म है, सारे सारे। किसी ने कहा मेरे को सर ये बना के दिखाओ, ये ऐसा। एक मैथ का बंदा मिल गया रास्ते में मेरे को ट्रेन में, ऐसा बनाओ, दिल्ली टू पटना, पटना टू दिस। अब मैं कैसे बनाऊं लकीर, 3 पॉइंट कैसे बनाऊं? अरे यार ड्राइंग नेम स्पेस है, बोलो क्या है, ड्राइंग नेम स्पेस। रोता क्यों है? ये मेरी क्लास हो गई, माई फॉर्म। अब ये क्लास माई फॉर्म। इस क्लास को ही समझने में मेरे को 10 साल लग गए। इस अलग क्लास है क्या, ये क्लास नमूना है क्या? अब मैंने इस क्लास को किसने इनहेरिट कर दिया बोलो? अगर मेरी क्लास इनहेरिटेंस की बात कर बेटा, आप में मैं आपके पापा से नहीं मिला, बट ओबियसली मैं अगर पापा से मिलूंगा तो बोलूंगा अंकल आपके बेटे में कुछ आपकी गुण जाती है। तो व्हाट इनहेरिटेंस derived class is capturing some behavior of the word. यहाँ देख सुनो, what is very worst of inheritance? Very worst of inheritance. दुखी हो चुका हूँ, क्या हो गया? Derived class is ready, always willing to accept my functions. Derived class always क्या करता है बोलो, base class के function को call करता है. It's very worst inheritance. क्यों यार? इस एज में मेरे बेटा मुझसे पैसा मांगता है यार। देव को साला मैं पूरा खून दे दूं बदतमीज को, और सोचता हूं कब तक दूंगा साले को, साले को कब तक दूंगा? मांग के तो देखे साला खून दे दूंगा, बट कब तक बदतमीज? हाउ लॉन्ग बेस क्लास विल प्रोवाइड अ सर्विस टू व्हाट डिराइव्ड क्लास? डांट भी नहीं सकता हूं, करूं क्या? बदतमीज हो चुका है। लगता है डे 1 से थोड़ी परवरिश गलत हुई थी, लगता है मेरे से। इनहेरिटेंस वो है ग्रुप जहां बेस क्लास डिराइव क्लास बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करता, सुनो त्रिपाठी, डिराइव क्लास बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करता, और कुछ दिनों के बाद वो डिराइव क्लास उस बेस क्लास के फंक्शन को ओवरराइड करता है। इनहेरिटेंस वो है, am I right? सोचो यहाँ देख, एक बच्चा का मुना आता सेंटर में, साला बैठता है, वो मेरी क्लास का वेट करता है, वो सर को देखना पसंद नहीं करता। जो मेरी क्लास का वेट करे उसको मैं देखना गया, वो सर बात ही करना पसंद नहीं करता। जो बैठ के पढ़ रहा है उससे मेरी दोस्ती हो।
आप साले से मैंने दोस्ती करा। मनोज कक्कर 27 लाख के पैकेज से दोस्ती करा मेरे से बड़े एज में। मोटा मनीष कुमार सिंह दोस्ती करा। बेटे पढ़ाया नहीं, अपनी संस्कार दी, ओवरराइट किया। बोलो कौन? ओवरराइट। Inheritance really means not only derived class is always very go for accessing the what base class comes. यार तू इतना से मेरे पास आ रहा है, तू कुछ सिखा नहीं मेरे से। सीख तो लिया जावा डॉट, ओके ठीक है। अरे कमीने, जावा डॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहेवियर की बात। किसकी बात? किस तरह तो डॉट नेट से जावा से कितना ऊपर जाता है मैं देखता हूँ तेरे को। चल मैं त्रिपाठी, एक आदमी बिहेवियर से बड़ा बनता है। इफ इज वेल बिहेव्ड ही कैन लर्न जावा एंड ऑल। इस तरह तुम्हें बगल से क्रॉस कर जाओ तो मेरे को सर बोलो गुड मॉर्निंग, मैं तुमको देखूंगा नहीं, तुम है कौन? हु आर यू बेबी? आई डोंट नो। हम उसी से कंसर्न रखते हैं जो ओवरराइड कर सकता है। तो ओवरराइड का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास एजुकेशन है, सर तुम ही क्या लेकर आओ? एजुकेशन। वो डार्लिंग तब आएगा तो तुम बैठ कर अपने से पढ़ेगा। तो साला किसी से गधे दुनिया में क्लास कर ले, तू यशवंत कानतकर से भी क्लास कर ले, नागपुर पढ़ाता है वो, कुछ ना होगा तेरा। यू कैन गेट ओनली आइडिया बट यू हैव टू एक्सप्लोर द आइडिया। और सुनेगा इनहेरिटेंस का वर्स्ट केस। चलो सुन, डिराइव क्लास देख पढ़ा रहे क्या बैठ के, इनहेरिटेंस साले कह लो, सी शार्प कह लो, जो कहना कह लो। और सुनेगा कदे डिराइव क्लास इज वेरी एक्सेसिंग द बेस क्लास फंक्शन, इट्स वेरी फन। अच्छा है, छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है। आप 10 साल छोटे थे, आप मम्मा में घुस गए, पापा में घुस गए, और साला घुस के दिखाओ करे। एक एज तक चलता है, उसका नहीं चलता है गुरु। आज मेरा बेटा मेरे ऊपर चला बैठ जाता है, मेरी चीजों को छीन लेता है, अच्छा लगता है, इट्स अ लव अफेक्शन। पर एक 10 साल के बाद करेगा तो बुरा लगेगा। हमारा राइट बेटे, क्या बात है, मैंने संस्कार भूल गए। उसने क्या सीखा, क्या कमाया, उससे मुझे मतलब नहीं। तुमने मेरा कितना बिहेवियर ओवरराइड किया, उससे मतलब। मैं त्रिपाठी, मैं इनसे भी पूछूंगा आपकी लाइफ का हिस्ट्री क्या है। मैं इन बंदे से मिला, आते हैं सेंटर, मैं इनके घर पे गया तो लगा ये आदमी क्या है, इज अ मैन, इज अ मैन ऑफ इंस्पिरेशन। मैं बैठे, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, इनका इज्जत सब कुछ इनके पास। इज अ कंप्लीट मैन। बेटा सेटल्ड है, सेकंड भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 55 लाख के पैकेज पे यूएसए रिसाइकमेंट में, बहू 45 पे सीधा रिसाइकमेंट, अपना बेस्ट सेटल्ड है। तो बेटे मैं ही क्या कर रहा हूं, अपने रहते रहते इनका बेटा बन गया हमारा, राइट। इससे अच्छा इनहेरिटेंस क्या हो सकता है? अब उनके पास क्या है, इनको उससे बिल्कुल मतलब नहीं। और डार्लिंग थर्ड तो सुन, इनहेरिटेंस का वर्स्ट पहले सुन, वर्स्ट सुन त्रिपाठी। सर पहला तो बोल दिया, अच्छा है मेरा बेटा डेली फंक्शन कॉल करता है। मैं बेटा सोचता हूँ कब तक सारा फंक्शन कॉल करेगा, करे ओवरराइड कर। तो मैं भी पढ़ रहा हूं, तुम भी पढ़। आज आता है ना बच्चा, लैपटॉप किसके पास होता है मेरा, बोल साले के पास। और कुछ छू के दिखाते मेरा लैपटॉप, मतलब ही नहीं होता। थर्ड सुन बेटे, बेटा थर्ड सुन यार। मैंने डिस्कस किया त्रिपाठी से, एग्जाम्पल दे रहा हूं, मनीष से, अपनी वाइफ से, अपने पापा मम्मी से। यार जब मैं पढ़ता हूं तो वो कमीना पढ़ता है, ओवरराइड। मतलब मेरे पास ही बॉडी है और तू उसको क्या कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है। जब मैं पढ़ता हूं तो तू भी पढ़ता है। जब साले मैं नहीं पढ़ता, तू क्यों नहीं पढ़ता है? तुमको साले पढ़ना पड़ेगा जानवर, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन। बोलो कौन?
तो बेस क्लास कैन कंट्रोल द what? Derived class. A base class cannot control the derived class. He is not a base class. Am I right? तो बेस क्लास का डिक्लेयर करता है बेटा, एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करता है। बोलो कौन? यू। इंग्लिश पढ़ ले। यू हैव टू। चलो तुम्हें काम करना है इस वक्त। संदीप ने किसकी जॉब लगवाता है? तो मैं बैठ के प्रैक्टिस करता हूँ। मैं सिगरेट पी के पूरा सेंटर वॉक करता हूँ और देखता हूँ कौन सा बैठ के पास है, मैं उसकी जॉब लगवाता हूँ।